Hello friends, my name is Tisha. Today we are going to learn about drug information services. So, in this video what we are going to do is, firstly we are going to learn about drug information center, then poison information center, sources of drug information, computerized services, storage and retrieval information. So let's begin. Firstly, the drug information. It is defined as knowledge of facts through reading, study, or practical experience on chemical substance that is used in diagnosis, prevention and treatment of the disease. मतलब क्या कह रहा है कि drug information is a knowledge or a facts, or we can say gaining a knowledge through study, reading or practical experience on a chemical substance. Here chemical substance drug भी हो सकता है, वो drug जो कि हम diagnosis, prevention और treatment के लिए use करते for a disease. Okay, so now what is drug information services? The person or activity of providing services related to drug information are called drug information services. It is undertaken by pharmacists in providing information of optimum drug use. ऑप्टिमम मतलब हाईली एफिकेशियस एंड लो कॉस्टली जो ड्रग होता है, जो लेस साइड इफेक्ट दे, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम ड्रग यूज के बारे में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फार्मासिस्ट, that is called drug information services. It is those services which covers the activity of specially trained individual, here pharmacist, to provide accurate, unbiased, factual information in response to patient-oriented drug problems that is received from healthcare professional. So, drug information are those services which cover the activity. मतलब ये एक्टिविटी है वो जो स्पेशली ट्रेंड इंडिविजुअल होते हैं, ये फार्मासिस्ट होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं एक्यूरेट, अनबायस्ड, विदाउट कोई भेदभाव के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो रियल प्रूवन इंफॉर्मेशन है इन रिस्पॉन्स टू पेशेंट ओरिएंटेड, पेशेंट ने जो के लिए पेशेंट ओरिएंटेड जो ड्रग प्रॉब्लम्स है उनकी इंफॉर्मेशन या उनकी जो फैक्ट से प्रोवाइड करना बाय फार्मासिस्ट, or it is received from special healthcare profession. Okay, now firstly let's talk about the introduction. It is current, relevant and critically examined data about the drug and drug use for given patient or situation. ये क्या होता है? करंट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है. रिलेवेंट मतलब अकॉर्डिंग टू द पेशेंट की क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू पेशेंट की जो ड्रग है उसके रिलेवेंट. क्रिटिकली एग्जामिन डेटा मतलब क्रिटिकली प्रूव डेटा होता है साइंटिफिकली अबाउट द ड्रग, या तो ड्रग यूज फॉर अ गिवन पेशेंट और सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द डिसीज. मैनी इंस्टीट्यूशन रन DIC, दैट इज ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज. ऐसे इंस्टीट्यूशन जो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, दे आर मेजरली कॉल्ड DIC, फॉर प्रोविजन ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन टू एवरी ग्रुप और काइंड ऑफ पीपल फ्रॉम एनी place. So history. First DIC was developed in Kentucky in 1960, that is in US. Kentucky में 1960 में डेवलप हुई थी और currently 80% of the hospitals in United States have DIC. इंडिया में अभी DIC का इतना वैल्यू या फिर इतनी DIC सेंटर्स नहीं है, बट USA में मेजरली 80%. नेपाल इन इन्फेंसी स्टेज है फ्यू सेंटर्स. जो नेपाल में जो इन्फेंसी मतलब छोटे स्टेज में फ्यू सेंटर्स है. इन नेपाल DDS स्टार्टेड दिस टाइप ऑफ सर्विसेज. नेपाल की जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर ड्रग डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने ये फ्यू सर्विसेज लाइक DIC स्टार्ट की हुई है. Need of drug information. So in this slide we are going to why we need information on drug, or why there is a need of drug information. The number of drug in the international market has increased very much because international or national market हो, number of drugs had widely increases. एक ही एक ही chemical substance के कितने सारे drugs हो गए different excipients को डाल के. So we need a accurate and relevant information about the drugs जो कि particular disease के लिए काम करे.
That's why we need a drug information service. The newer drugs are generally more potent and selective and formulation become increasingly complex. अगर हमें ईच एंड एवरी ड्रग के बारे में जो मार्केट में उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, या फिर जो न्यूअर ड्रग्स मार्केट में उनके बारे में भी ड्रग इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो जो न्यूअर ड्रग्स होती है वो मोर पोटेंट होती, इफेक्टिव होती और सिलेक्टिव होती है, एंड फॉर्मुलेशन बिकम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स. और जिससे क्या होता है कि जो भले उनका फॉर्मुलेशन कॉम्प्लेक्स होता है, बट दे आर मोर पोटेंट एंड सिलेक्टिव टूवर्ड्स द your disease. The literature on the drug is also expanded and covered wide. मतलब as we all know बहुत सारे articles, thesis आने लग गए on the drugs and its efficacy, side effect. तो ये भी expand होता जा रहा है और उसमें भी wide range of information है. To introduce a new drug into the practice, the professional need to evaluate the drug information. अब किसी भी physician है या फिर surgeon है, उनको उनको पर्टिकुलर डिसीज के बारे में, न्यू ड्रग के बारे में पता चला कि यस ये न्यू ड्रग मार्केट में आई, बट दे नीड टू इवेल्युएट, उन्हें वो वाले ड्रग के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उनकी पोटेंसी, उनकी वो ड्रग की सिलेक्टिविटी, एफिकेसी, प्राइसिंग, ये सब इंफॉर्मेशन वो नए ड्रग के बारे में होनी चाहिए. तो फिजिशियन भी कहाँ से इंफॉर्मेशन निकालेंगे? DIC से, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर से. A quick simple reference to pharmacopoeia or formulary is no longer sufficient. अब pharmacopoeia या फिर hospital formulary होती है, उसमें प्री डिसाइडेड या फिर जो ड्रग्स है ऑलरेडी pharmacopoeia में पहले से, उनकी इंफॉर्मेशन होती है. और ड्रग फॉर्मुलरी बनाते वो भी हॉस्पिटल वाले ही बनाते हैं, hospital formula. So there is also not sufficient amount of drug information. तो मेनली ईच एंड एवरी A to Z इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? ड्रग इंफॉर्मेशन DIC से. तो फार्माकोपिया एंड फॉर्मुलरी भी नो लॉन्गर सफिशिएंट है ड्रग की इंफॉर्मेशन निकालने के. दैट्स व्हाई वी नीड DIC. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज. So firstly, the provision of information to health profession on specific problem related to use of drug in particular patient. Okay, so main on aim क्या है? जो drug information service है वो provide करती है information to healthcare professional. healthcare जो professionals होते हैं, जो physician होते हैं, उनको particular problem के related जो drug use करते या फिर ड्रग यूज होती है जो पर्टिकुलर पेशेंट या फिर पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. The provision of information to officials in government agency to optimize the drug decision making. ओके, और क्या होता है कि प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इन ऑप्टिमाइज, मतलब एक्यूरेट एंड राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जिससे कि जो उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो भी एकदम ऑप्टिमाइज हो जाए, राइट हो जाए, एक्यूरेट हो जाए. द प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ गाइडलाइंस और फॉर्मुला. ड्रग इंफॉर्मेशन अगर प्रॉपर देंगे, जिससे कि क्या होगा कि गाइडलाइंस या फिर फॉर्मुलरीज या फिर नई पॉलिसी बनेगी, वो भी एक लेवल न्यू बनेगी और ऑप्टिमाइज होगी. तो इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस इम्प्रूव करना है, पेशेंट अध्यरेंस फॉलो कर सकते हैं. टू प्रोवाइड अ गाइड टू रिस्पॉन्सिबल सेल्फ मेडिकेशन. एक सेल्फ मेडिकेशन गाइडलाइंस भी हो सकते हैं, अगर पेशेंट को पता है अबाउट अबाउट अ पर्टिकुलर ड्रग, उसकी ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन पता है, तो ही और शी मे टेक अ सेल्फ मेडिकेशन, बट एक प्रॉपर लेवल तक, वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ही और शी कांट टेक. टू डेवलप एंड पार्टिसिपेट इन कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम. अगर ड्रग की इंफॉर्मेशन किसी भी फिजिशियन को या फिर किसी भी मैन को पता है, तो he or she can participate also in education program about drug information spreading. To participate in undergraduate and teaching program, undergraduate या फिर graduate teaching program में भी participate कर सकते हैं. To develop educational activity regarding the proper use of drug for community. If एम्स एंड और एम क्या हो गया कि एजुकेशनल एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि पेशेंट अवेयर रहे अबाउट द अप्रोप्रिएट ड्रग यूज. टू प्रिपेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट मटेरियल ऑन ड्रग टू हेल्थ प्रोफेशनल इन द फॉर्म ऑफ ड्रग बुलेटिन. अगर ड्रग इंफॉर्मेशन हमें पता है तो क्या कर सकते हैं कि वी कैन मेक अ बुलेटिन या फिर पैम्पलेट अबाउट द पर्टिकुलर ड्रग इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली. टू डेवलप एंड रिसर्च प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं.
सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन या फिर रिसोर्सेज अवेलेबल, मतलब ड्रग की जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ कहाँ से मिल सकती है, कौन कौन से सोर्सेज है। तो देर आर थ्री सोर्सेज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. फर्स्टली प्राइमरी सोर्सेज, इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑथर विदाउट एनी इवेल्यूशन बाय सेकेंड पार्टी. मतलब जो जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर जो फिजिशियन होते हैं, जो जो भी रिसर्च करते हैं या फिर जो जो भी उनके जो रिसर्च होती है वो प्रेजेंटेड बाय ऑथर्स, मतलब ये वाली इंफॉर्मेशन होती है वो ऑथर्स प्रेजेंट करते हैं और उनको कोई इवेल्युएट करने वाला नहीं होता. मतलब द इंफॉर्मेशन राइट है या रॉन्ग है या फिर रिलेवेंट है कि नहीं, वो सेकेंड पार्टी इवेल्युएट नहीं करती. वो सीधे जो ऑथर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो सीधा प्राइमरी सोर्स में पब्लिश कर देते हैं इंफॉर्मेशन और उनका इवेल्यूएशन करने वाली सेकेंडरी पार्टी नहीं होती. प्रोवाइड मोस्ट करंट इन्फॉर्मेशन, ये क्या होती है, मोस्ट करंट एंड वाइडली यूज्ड इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द ड्रग. जैसे एग्जांपल क्या, आर्टिकल पब्लिश्ड इन जर्नल, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल या फिर थीसिस होती है जो साइंटिस्ट पब्लिश करते हैं जर्नल्स में आर्टिकल्स, वो ऑथर्स पब्लिश करते हैं. तो उनका कोई इवेल्यूएशन करने वाला नहीं होता कि ये इन्फॉर्मेशन राइट है या रॉन्ग है या रिलेवेंट है कि नहीं, कोई सेकेंड पार्टी नहीं होती. एज इन सेकेंडरी सोर्स में क्या होता है कि ओरिजिनल सोर्स हैज़ बीन इवेल्युएटेड बाय सेकेंडरी पार्टी. मतलब जो जो भी सेकेंडरी पार्टी होती है या फिर एक बॉडी होती है, जो जो भी ये वाले रिसोर्सेज होती है, ये वाली इंफॉर्मेशन होती है जो सेकेंडरी सोर्स वाली, वो इवेल्युएट करती है, को एग्जामिन करती, अदर देन पब्लिशर. जो एक बार पब्लिशर ने पब्लिश तो कर दिया वो आर्टिकल या फिर वो थीसिस, बट उनको इवेल्युएट करने के लिए एक सेकेंडरी पार्टी होती है. फिर वो अगर सेकेंडरी पार्टी अप्रूव करे देन ओनली वो इंटरनेट पे अवेलेबल होती. मॉडिफाइड एंड रीअरेंजमेंट फॉर्म होता है प्राइमरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स का एक मॉडिफाइड रीअरेंज फॉर्म होता है सेकेंडरी सोर्स. रिव्यू आर्टिकल्स लाइक लेक्सिस, नेक्सिस और मेडलाइन पे भी जो आर्टिकल्स मिलते, दे ऑल आर सेकेंडरी सोर्स. टर्शरी सोर्स, टर्शरी सोर्स इज अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सोर्स and secondary source arranged in a well defined manner to represent a composite of available information. मतलब जो जो भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है लाइक प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स को एक कंपोजिट, एक अच्छे से रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में अरेंज कर देना, जो जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड टर्शरी फॉर्म. लाइक फार्माकोपियाज, बीपी, यूएसपी, आईपी एटसेट्रा, एनसाइक्लोपीडिया होती है, दे आर टर्शरी फॉर्म्स. अदर सोर्सेज क्या क्या होते हैं, डीआईसी ऑल्सो रिसीव्स इन्फॉर्म, डीआईसी और कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकती है. पब्लिक हॉस्पिटल अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग. अब पब्लिक या फिर कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडीआर फॉर्म्स होते हैं. अगर किसी भी पेशेंट को एडीआर हुआ है तो उनकी पर्टिकुलर प्रोसीजर होती है और वो फॉर्म होते हैं, तो वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. लोकल ड्रग लिस्ट होती है, वहाँ से नेशनल फॉर्मुलरीज होती है, हॉस्पिटल फॉर्मुलरीज जिसमें रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द ईच एंड एवरी ड्रग्स की होती है, इंटरनेट से ले सकते. फ़ोन कॉल्स टू मैन्युफैक्चरर से भी ले सकते, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो टू अदर डीआईसी. ड्रग इंफॉर्मेशन स्किल, ड्रग इंफॉर्मेशन स्किल होती है तो क्या क्या होना चाहिए. जो ड्रग इन्फॉर्मर होता है, ड्रग इन्फॉर्मर कौन होता है, फार्मासिस्ट होता है. तो उनमें क्या क्या स्किल होनी चाहिए. तो ड्रग इन्फॉर्मेशन शुड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन एंड शुड आस्क ऑल द नीडेड क्वेश्चन टू गेट द अल्टीमेट क्वेश्चन. मतलब ड्रग इन्फॉर्मर होता है, उन्हें खुद तो नहीं पता चलेगा कि पेशेंट को या फिर फिजिशियन को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट द ड्रग. सो शुड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन. मतलब एज अ क्वेश्चनर जो हम क्वेश्चन करते हैं ड्रग इन्फॉर्मर को, वो ड्रग इन्फॉर्मेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्वेश्चन को अच्छे से समझे, वो क्वेश्चन का नेचर समझे. नेचर इन द सेंस कि एडवर्स इफेक्ट के बारे में पूछ रहे पेशेंट या फिर साइड इफेक्ट के बारे में पूछ रहे या फिर सेफ्टी एफिकेसी के बारे में, डोजेज के बारे में. इन शुड आस्क ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन टू गेट अल्टीमेट क्वेश्चन. मतलब जो जो भी वो क्वेश्चन समझने के लिए जो क्रॉस क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ऑल द नीडेड क्वेश्चन, वो भी ड्रग इन्फॉर्मर कर सकते हैं. सो एक सिस्टमिक अप्रोच किए गए, डिजाइन बाय होस्ट एंड क्रिकूड. एक स्पेशलिस्ट है होस्ट एंड क्रिकूड, उन्होंने एक मॉडिफाइड अप्रोच बताया गया इन अ रिलेवेंट स्टेप, जिससे ड्रग इन्फॉर्मर
फॉलो कर सकता है, जिससे कि उन्हें अच्छे से क्वेश्चन पता चल सके पेशेंट का, या फिर जो भी क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं। फर्स्ट इज स्टेप 1, सिक्योर डेमोग्राफिक्स ऑफ द रिक्वेस्टर। मतलब रिक्वेस्टर की जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो उनको सिक्योर कर देना या फिर इवेल्युएट करना। फर्स्टली हु रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट किसने की है, पेशेंट ने की है, फिजिशियन ने की है, या फिर किसी और ने की है। जैसे कि अगर पेशेंट ने की होगी तो हमें उस हिसाब से आंसर देना है। अगर किसी फिजिशियन ने की होगी तो फिजिशियन इज नॉलेज, उनको नॉलेज है तो हम उन्हें और साइंटिफिक वे में आंसर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर पेशेंट है तो उन्हें एकदम लेमैन के जैसी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा, राइट। सो डिफरेंट है, इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हु रिक्वेस्ट द ड्रग इन्फॉर्म। मेडिकल और नॉन मेड प्रोफेशनल है, जैसे अभी बताया, वो इंसान एजुकेटेड है या नॉन एजुकेटेड है, पर्सनल है। अब रिक्वेस्टर की नेम, लोकेशन, फ़ोन नंबर ऑफ द रिक्वेस्टर, अगर वो खुद पेशेंट है तो उनके डिसीज, पास्ट हिस्ट्री एंड ऑल, दिस डिटरमाइन द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स दैट विल बी गिवन। जैसे मैंने कहा कि जो रिक्वेस्टर है उनके हिसाब से दिया जाएगा कि हमें कैसे टाइप के रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने। ऑब्टेन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है अबाउट द रिक्वेस्टर वो ऑब्टेन करनी है। जैसे कि अगर पेशेंट है तो इज ही और शी इज टेकिंग मेडिसिन। अगर वो पेशेंट ने ड्रग इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछे तो वो पेशेंट वो मेडिकेशन ले रहा है कि नहीं, इफ़ यस तो क्यों ले रहा है। अगर केयर गिवर है तो इफ़ ही और शी अ केयर गिवर और वांट्स टू टेक मेडिसिन, उन्हें मेडिसिन लेनी है। दिस स्टेप इज डिटरमाइन व्हाट एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड। ये अगर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पास्ट मेडिकेशन हिस्ट्री भी पूछ सकते, राइट। या फिर ऐसे ही कोई ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन लेने आ रहे तो वी मेक श्योर कि हम उन्हें पूछेंगे कि वेयर द रिक्वेस्टर हर्ड द ड्रग। मतलब हम पूछेंगे कि ये वाले ड्रग है, ये वाले ड्रग का नाम या फिर ये वाले ड्रग की जो इन्फॉर्मेशन वो आपने पहले कहाँ सुनी थी, कहाँ देखी थी, या फिर किस पेशेंट को लेते हुए देखा था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हम डिटरमाइन करेंगे, जिससे कि हमारा जो आंसर देने की जो प्रोसेस है वो रिलेवेंट हो जाएगी और पेशेंट स्पेसिफिक हो जाएगी। डिटरमाइन एंड कैटेगराइज द अल्टीमेट क्वेश्चन, मतलब हमें पहले तो उन्होंने जो भी क्वेरीज किए या फिर जो भी क्वेश्चन पूछे उन्हें एक पुटिंग अ पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन टुगेदर, मतलब वो सारे इंफॉर्मेशन उनको कलेक्ट करना है, इवेल्युएट करना है, और वंस इट इज़ फुल्ली डिटरमाइन हो जाए, हमें समझ आ जाए, तो वो क्वेश्चन को कैटेगराइज करना है। मतलब कैसे कैटेगराइज करेंगे कि वो इंफॉर्मेशन एडीआर के बारे में, थेरेप्यूटिक ड्रग के बारे में, एफिकेसी के बारे में है, या फिर कोई साइड इफेक्ट के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, डोजेज इफेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड कैटेगराइज ऑफ द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन को हम कैटेगराइज करेंगे, उसी हिसाब से हम आंसर दे सकते हैं, राइट। डेवलप स्ट्रेटजी एंड कंडक्ट रिसर्च, मतलब अब हमें स्ट्रेटजी बनानी। हमने अल्टीमेट क्वेश्चन को कैटेगराइज कर दिया, हमने क्वेश्चन को डिटरमाइन भी कर दिया कि ये टाइप का क्वेश्चन है, और हमें ये क्वेश्चन को कैटेगराइज भी कर दिया। तो अब हमें स्ट्रेटजी बनानी है एंड कंडक्ट रिसर्च करना है कि स्ट्रेटजी मतलब हम कैसे अच्छे से इवेल्युएट करके जो रिक्वेस्टर है उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर रिसर्च करेंगे पहले। तो इफ़ वी डोंट नो अबाउट द ड्रग इन्फॉर्मेशन तो हम पहले रिसर्च करेंगे, या कहाँ से रिसर्च करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सोर्स है, वहाँ से रिसर्च करेंगे और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। पहले हम इन्फॉर्मेशन लेंगे और फिर उस रिसर्च के हिसाब से पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बनाएंगे और उस स्ट्रेटजी से हम आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो क्या लिखा है, स्ट्रेटजी शुड बी डेवलप विद टिपिकल एल्गोरिथम विद 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स। मतलब ये कंपोनेंट्स क्या है, रिसर्च करके, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी लिटरेचर है, यहाँ से रिसर्च करेंगे और फिर हम स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे और फिर आंसर को इवेल्युएट करेंगे। नाउ अब आंसर देना है, परफॉर्म, इवेल्युएट, एनालाइज एंड सिंथेसिस। मतलब provider should take time to evaluate the information, analyze and then synthesize it into good reply। मतलब क्या करना है कि जो परफॉर्मर है, जो प्रोवाइडर है वो पहले इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करेगा, फिर आंसर को सिंथेसाइज करेगा। आंसर को सिंथेसाइज करना मतलब एक गुड रिप्लाई लगना चाहिए, अच्छे से उनको रिप्लाई करना चाहिए। पहले हम ड्रग की इंफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उन इंफॉर्मेशन को और बढ़ाएंगे बॉडी के हिसाब से,
एंड देन कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है कि यस दिस इज द कंक्लूजन अबाउट योर आंसर। तो ये 3 स्टेप में डिवाइड कर देंगे अपने आंसर को। ओके, सो फॉर्मुलेट इन गिवन रिस्पॉन्स, जैसे मैंने आगे बताया कि इस्टेब्लिश टू हेल्प गुड रिस्पॉन्स देना है अगर हमें ड्रग के बारे में, तो वी हैव टू गिवन द इंफॉर्मेशन इनटू इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। अपने आंसर को पहले इंट्रो देना है, फिर बॉडी में अबाउट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रग, और कंक्लूजन वो ड्रग का कंक्लूजन क्या है, ये 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर देना अपने रिस्पॉन्स को। कंडक्ट फॉलोअप एंड डॉक्यूमेंटेशन, अब हमें फॉलोअप क्वेश्चन करने, मतलब चेकिंग विद द रिक्वेस्टर टू मेक श्योर his or her question has been sufficiently and completely answered। मतलब हमें फॉलोअप क्वेश्चंस पूछने हैं, मतलब अब हमें फिर से क्वेश्चन पूछने, मैंने ये ड्रग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताई, तो आपको क्या क्या समझ आया, क्या अगर समझ नहीं आया तो हमें वो रिक्वेस्टर, हमें एज अ प्रोवाइडर हमें चेकिंग विद द रिक्वेस्टर, मतलब रिक्वेस्टर को चेक करना है, क्रॉस एग्जामिन करना है कि ही उसके जो क्वेश्चन है वो सफिशिएंटली और कम्प्लीटली आंसर्ड हुए हैं कि नहीं। Of vital importance is to documentation all the step, as we all know हम ड्रग इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म भी आता है, राइट, तो ईच एंड एवरी स्टेप को हमें डॉक्यूमेंट करना है। So next is general guideline for response of drug information, मतलब as a drug informer we एक general guideline होती है, general points होते हैं that we should be keep in mind during information provide। So do not guess, हमें guess नहीं करना है, हमें पहले अच्छे से जो ड्रग रिक्वेस्टर है उनकी इंफॉर्मेशन या फिर उनका क्वेश्चन अच्छे से सुन लेना है, और हमें गैस नहीं करना है ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा पूछा होगा। इफ़ वी आर नॉट क्लियर अबाउट द क्वेश्चन, हमें उनके और क्रॉस क्वेश्चन करने, फिर वो सारे क्वेश्चन को इवेल्युएट करने, जिससे कि हम अनुमान गैस नहीं लगाने। ओके, सेकेंड है टेक सेवरल एथिकल इश्यूज इनटू द अकाउंट लाइक दिस। सो हमें जो सेवरल एथिकल इश्यूज होते हैं उन्हें मेंटेन करने या फिर उन्हें ध्यान में रखते हुए ही आंसर प्रोवाइड करना है। फर्स्ट है पेशेंट प्राइवेसी मस्ट बी मेंटेन, मतलब हमें ड्रग इंफॉर्मेशन ऐसी जगह प्रोवाइड करनी है या फिर ऐसी थोड़ी प्राइवेट प्लेस में जाके इन्फॉर्मर को बतानी है जिससे कि प्राइवेसी मस्ट बी मेंटेन, मतलब हमें वो पेशेंट ने उनकी सारी हिस्ट्री मेडिकल कंडीशन बताई तो वो पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच में ही रहनी चाहिए, ना कि ऐसा ना हो कि आप ज़ोर ज़ोर से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो जिससे कि और लोगों को पता चले या फिर और जगह जाके आप उनकी बता रहे हो क्या जी पेशेंट को ये हुआ ये सो हमें उनकी प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी है। पेशेंट फिजिशियन रिलेशन कैन नॉट बी ब्रीच्ड, ब्रीच मतलब पुअर या फिर डिक्रीज नहीं होना चाहिए ऐसा, तो मतलब कि पेशेंट फिजिशियन रिलेशनशिप, मतलब पेशेंट फिजिशियन जो रिलेशनशिप, एज अ फार्मासिस्ट वी आर लिंक बिटवीन पेशेंट एंड फिजिशियन, तो उन बीच में जो रिलेशनशिप है, फिजिशियन ने जो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है अबाउट द ड्रग या फिर उनके थेरेप्यूटिक नेचर के बारे में या फिर थेरेप्यूटिक एफिकेसी के बारे में अबाउट द ड्रग, तो उनको मुद्दे रखते या फिर ऐसा नहीं बोलना है कि फिजिशियन है तो कुछ भी बोले मैं बोलूँ वो सुनो, नहीं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो ब्रीच्ड नहीं होनी चाहिए। Response is necessary if the inquiry intended to misuse or abuse the information that is provided। Okay, response is not necessary, मतलब हमेशा response देना necessary नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ऐसा लगे कि जो ड्रग इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहा है वो इंफॉर्मेशन को मिसयूज करे या फिर अब्यूज करे या फिर वो इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से यूज करे, तो वो वाले में आपको रिस्पॉन्स देना नेसेसरी नहीं है। ऑर्गेनाइज बिफोर अटेम्प्टिंग टू कम्युनिकेट द रिस्पॉन्स टू द इंक्वायरर, मतलब जो भी ड्रग रिक्वेस्टर है उनको आंसर देने से पहले आपको प्रॉपर आंसर को अच्छे से फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर देना, इवेल्युएट कर देना। टेलर द रिस्पॉन्स टू इंक्वायरर्स बैकग्राउंड, मतलब आपको रिस्पॉन्स ऐसे तरीके से देना है इंक्वायरर के बैकग्राउंड देके, कि मतलब अगर इंक्वायरर पेशेंट है तो आप उनकी कंडीशन को मुद्दे रखते हुए देना है। अगर इंक्वायरर फिजिशियन है तो अगर वो फिजिशियन है तो उनको थोड़े साइंटिफिक वे में फैक्ट्स एंड फ्लेक्चुअल इंफॉर्मेशन है उनके हिसाब से थोड़ा मेडिकल लैंग्वेज में समझाना है। तो इंक्वायर्स का जो बैकग्राउंड है उनको देख के मुद्दे रखते हुए हमें रिस्पॉन्स दें।
टेल द इंक्वायर वेयर द इंफॉर्मेशन वॉज फाउंड। इंक्वायरर को हमें बताना है कि आपने जो जो भी ड्रग के बारे में या क्वेश्चन पूछ रहे हो वो आपको कैसे कैसे ये क्वेश्चन आपके मन में आया, फिर आपके जो इन्फॉर्मेशन वो और कहाँ कहाँ आप प्रोवाइड कहाँ कहाँ से आप इंफॉर्मेशन और ले सकते हो एंड ऑल। Alert the inquiry of a possible delay when it takes longer than anticipated to answer the question. अगर किसी भी एज वी ऑल नो कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम भी फार्मासिस्ट है, हमें ईच एंड एवरी आंसर नहीं पता हो सकता, तो हमें पहले इंक्वायरर को बोलना है कि इतना डिले लगेगा, गिव मी सम टाइम एज अ फार्मासिस्ट। हमें बोलना है कि हमें 1 दिन का, 2 दिन का या फिर कुछ आवर का टाइम दीजिए, वो टाइम हमें स्पेसिफाई कर देना है। इतने टाइम में मैं आपको आपका आंसर या फिर आपका रिस्पॉन्स प्रॉपर वे में दे सकता हूँ। व्हेन इट टेक्स लॉन्गर देन एंटिसिपेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, जब हमें आंसर का क्वेश्चन ज़्यादा टाइम तक इवेल्युएट करने में टाइम लगे। आस्क द इफ इंक्वायरर्स क्वेश्चन इज आंसर्ड बाय द इंफॉर्मेशन। फिर हमें क्रॉस क्वेश्चन करना है कि जो जो भी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड किए हैं इंक्वायरर को, वो आंसर्ड बाय द इंफॉर्मेशन, जो जो भी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड किया उनके क्वेश्चन के हिसाब से अच्छे से आंसर हो गए हैं या नहीं। Now, now अब important point है drug information center. In general, at the service provider which provide drug information related to therapies, pharmacoeconomic, education, research and program. In short, drug information center या फिर DI center वो एक information service provider in the hospital related to drug information. Drug information कैसे होनी? Drug information therapy, pharmacoeconomics, related to education, research program, कुछ भी हो सकता है. It provides unbiased information to healthcare professional and to patient and consumers. ये एक unbiased information है, मतलब बायस नहीं करेगा कि फिजिशियन पूछे तो ही मैं आंसर करूँगा या फिर पेशेंट है तो नहीं, आंसर नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो प्रॉपरली इन अ अनबायस्ड मैनर सारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा, बट विथ रिस्पेक्ट टू इंक्वायरर्स प्रोफेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से वो अपना आंसर को फॉर्मेट करेगा। Many centers also provide workshop or other forms of training to enhance the skill of the healthcare professional. जो many centers होते, many जो मैनी DIC सेंटर्स होते हैं वो रेगुलरली टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते हैं अबाउट द ड्रग इन्फॉर्मेशन, जिससे कि क्या जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, फिजिशियन है, उनकी स्किल बढ़े और वो और नॉलेजेबल हो अबाउट द ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर यूजुअली लोकेटेड विद इन और एफिलेटेड विद इन अ लार्ज ऑर्गन। मतलब DIC सेंटर होते हैं वो मेनली कहाँ लोकेट करते हैं? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होती हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन होते हैं, मेनली वहाँ पे होते हैं। So now we will studying the staffing in the DIC, that is कौन कौन से members या फिर कौन कौन से staff होते हैं जो drug information को provide करने में provide करते हैं. Firstly, a pharmacist, as we all know, associated with proper knowledge of drug and action associated with its academic degree. मतलब pharmacist होता है वो एक प्रोमिनेंट होता है जो ड्रग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और स्पेशलिस्ट विद प्रॉपर नॉलेज ऑफ ड्रग और एसोसिएटेड विद एकेडमिक डिग्री, और उनकी डिग्री भी एक पर्टिकुलर एकेडमिक डिग्री होती है, जैसे कि M.Pharm या फिर PharmD and all. They provide drug information. Mainly 90% ऑफ द इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है ड्रग की? वो जो होते हैं फार्मासिस्ट। बाकी सब होते हैं वो जो असिस्ट होते हैं, जो फार्मासिस्ट को हेल्प करते हैं ड्रग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। बट ड्रग की जो मेन इंफॉर्मेशन होती है, ड्रग की जो इंफॉर्मेशन होती है, जो कंक्लूजन होता है, वो कौन प्रोवाइड करता है? फार्मासिस्ट टू द रिक्वेस्टर। फार्मेसी टेक्नीशियन एंड स्टूडेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? दे असिस्ट फार्मासिस्ट इन प्रोवाइडिंग ड्रग इंफॉर्मेशन लाइक लिटरेचर, सर्चिंग, रिट्राइवल ऑफ डेटा, रिसोर्सिंग, अपडेट एंड एक्सेट्रा। फार्मासिस्ट टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट स्टूडेंट होती है, ये क्या करते हैं? फार्मासिस्ट को असिस्ट करते हैं, एज असिस्टेंट काम करते हैं ड्रग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, जैसे कि कोई लिटरेचर होता है या फिर कोई नया आर्टिकल होता है या फिर किसी आर्टिकल को रिट्राइव करना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सोर्स प्रोवाइड करना है, ये सारे, या फिर किसी रिसोर्स के बारे में अपडेट करना है, तो ये सारे काम कौन करता है? फार्मेसी टेक्नीशियन एंड स्टूडेंट करते हैं, जो कि फार्मासिस्ट होते हैं उनको असिस्ट करते हैं, ड्रग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। इन शॉर्ट, पीपल ट्रेन इन लाइब्रेरी साइंस विद कंप्यूटर नॉलेज।
पीपल जो लाइब्रेरी साइंस में ट्रेन होते वो भी विथ प्रॉपर कंप्यूटर नॉलेज होते, वो भी जो फार्मासिस्ट होते उनको हेल्प करते, वो अपने ओन एक्सपर्टीज़ में, या फिर जैसे कि आजकल हमें पता है कि जो भी ड्रग के जो भी इंफॉर्मेशन थीसिस होते हैं वो सारे कंप्यूटराइज्ड होते हैं, इंटरनेट में अवेलेबल होने लगी, राइट। द सेंटर शुड हैव स्पेसिफिक आवर ऑफ ऑपरेशन, मतलब जो डीआईसी सेंटर होते हैं उनके सम स्पेसिफिक आवर ऑफ ऑपरेशन होने चाहिए, जनरली तो 24 आवर्स इंटू 7 वो ओपन होना चाहिए फॉर ड्रग इंफॉर्मेशन। एंड एडिक्वेट टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज होने चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर्स होने चाहिए, फ़ोन लाइन्स होने चाहिए, फैक्सेस होने चाहिए, एटसेट्रा टेक्निकल रिसोर्सेज भी होने चाहिए एडिक्वेट required. Okay, the drug information center have at least a latest publication and ideally published newsletter and other information update, मतलब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो भी यूज़ हो रही है या फिर अबाउट द ड्रग है जो इंटरनेट में अवेलेबल है, जो लेटेस्ट पब्लिकेशन है या फिर डेली पब्लिश न्यूज़ लेटर्स है, ऐसे लिटरेचर आर्टिकल से जो लेटेस्ट ड्रग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते, इन सारे का अपडेट और रिट्राइवल डेटा ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर के पास होना चाहिए। सो रोल ऑफ फार्मेसी क्या होना चाहिए? मस्ट बी पार्ट ऑफ डीआईसी, ड्रग इंफॉर्मेशन मेनली तो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर के पार्ट होने चाहिए, शुड बी रेडी टू गो फॉर इंफॉर्मेशन ऑल द टाइम, मतलब मोस्टली जब तक पॉसिबल हो तब दे pharmacist must be ready to go, मतलब always ready to provide information all the time. Okay, the drug information pharmacist is at interference of vast amount of knowledge on site and person needing the knowledge on other. जो ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट होता है वो कैसा होना चाहिए, उनके पास वास्ट मतलब ह्यूज अमाउंट का नॉलेज होना है एक साइड, बट ऑन द अदर साइड मतलब दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, ऐसा इंसान होने चाहिए कि नीडिंग ऑफ नॉलेज, मतलब ऑलवेज रेडी टू गेन नॉलेज फ्रॉम एनी सोर्सेज होना चाहिए। सो क्या क्या कहा गया है इस पॉइंट में कि एक साइड पे जो ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट होता है उनके पास वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज होना चाहिए, बट ऑन द अदर साइड ही इज रेडी टू बी अ पर्सन हु इज नीडिंग द नॉलेज, मतलब ऐसे पर्सन होने चाहिए जिन्हें हमेशा अप टू डेट नॉलेज गेन करने की चाहत हो, लाइक नीडिंग द नॉलेज, शुड प्रोवाइड प्रॉपर इंफॉर्मेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ, सॉरी ये चला गया, इरिस्पेक्टिव ऑफ पेशेंट्स बैकग्राउंड और रिक्वेस्टर्स बैकग्राउंड, मतलब रिक्वेस्टर्स बैकग्राउंड पे या फिर मैंने बोला था ना अनबायस्ड होते वो वैसे इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट बैकग्राउंड ही देनी है उन्हें इंफॉर्मेशन, शुड प्रोवाइड प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन, मतलब ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन होती है जो एक चैट पेपर या शॉर्ट चैट पेपर काइंड का बुलेटिन होता है, वो क्या होता है, इट इज़ द लेटेस्ट डेवलप्ड, इट पब्लिशेस द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन मेडिकल साइंस, द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ड्रग, न्यू इंडिकेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्रग। एक बुलेटिन होता है, लाइक बट बुलेटिन मतलब एक ऐसा पेपर जैसा लीफलेट या फिर पैम्पलेट जैसा होता है जिसमें कि लेटेस्ट डेवलपमेंट इन मेडिकल साइंस में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए या फिर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ड्रग्स हुए, समटाइम रिसर्च के बारे में होता है, उनकी न्यू इंडिकेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ड्रग होता है एक पूरे पैम्पलेट में, उसे कहते हैं बुलेटिन। One of the PTC's duty is to assist the pharmacist in conducting a teaching program within the hospital through pharmacy publication, मतलब कोई भी एक पीटीसी मेंबर होता है, कोई भी एक पीटीसी कमेटी का जो मेंबर होता है फार्मेसी थेरेपी, वो फार्मासिस्ट को असिस्ट करता है, हेल्प करता है इन कंडक्टिंग अ टीचिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिससे कि जो फार्मासिस्ट के जो लेटेस्ट पब्लिकेशंस है, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड ड्रग है, उनके बारे में जो भी नर्सेज है या फिर फिजिशियन है या फिर स्टूडेंट्स है उनको अवेयर कर सके अबाउट दैट इंफॉर्मेशन। द मेथड एम्प्लॉयड टू डिससेमिनेट इंटरडिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन आर यूजुअली बुलेटिन बोर्ड, नोटिस एंड कमेटी मीटिंग। इंटर डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन मतलब जो डिपार्टमेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी या फिर स्प्रेड करनी, फॉर एग्जांपल जो पीटी
पीटीसी कमेटी है, फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी है, या फिर डीआईसी सेंटर्स के जो मेंबर्स हैं, उनके पास ही ये जो न्यूली इंट्रोड्यूस ड्रग है या फिर लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंस में क्या क्या, वो वाली इंफॉर्मेशन उन्हें कैसे प्रोवाइड होगी, थ्रू मीटिंग्स. ओके. बट जो बाकी जो फिजिशियन है, बाकी जो नर्सेज है, बाकी जो फार्मासिस्ट है स्टूडेंट है, या फिर बाकी जो ट्रेनिंग स्टूडेंट है, उन्हें कैसे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी. इंटर डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन मतलब जो डिपार्टमेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन वो डिससेमिनेट, वो कैसे पहुंचाई जाएगी, थ्रू दिस बुलेटिन बोर्ड्स ऑन द नोटिस बोर्ड्स एंड कमिटी मीटिंग्स में. ओके. द बुलेटिन नॉर्मली पब्लिशेस द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन. जो बुलेटिन होते हैं उनमें क्या क्या होता है, जो एज हियर जो बुलेटिन्स होती है, ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन्स होते हैं, उनमें लेटेस्ट डेवलपमेंट मेडिकल साइंस में क्या क्या है, न्यूली इंट्रोड्यूस ड्रग होते हैं, न्यू इंडिकेशन, सर्टेन ड्रग्स के जो न्यू न्यू इंडिकेशन, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, अपडेट ऑन ड्रग इंफॉर्मेशन, एडीआर, साइड इफेक्ट, एफिकेसी, ये सारी इंफॉर्मेशन वो बुलेटिन में होती है. Pharmacists normally had responsible for this publication. However, contribution are obtained from pharmacists, physician, nursing, and other interested group like therapeutic dietitian for food drug interaction. Okay, for publishing the bulletin. Sorry, यहाँ पे नहीं लिखा है. For publishing the bulletin add कर देना. Okay. So pharmacist mainly responsible होता है जो बुलेटिन को बनाने के लिए, वो होते हैं फार्मासिस्ट. बराबर. अगर जो बाकी कंट्रीब्यूशन किसका होता है, फ्रॉम अदर फार्मासिस्ट का भी होता है, फिजिशियन का, समटाइम नर्स होते हैं, या फिर समटाइम्स जो अदर इंटरेस्टेड ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं बेस्ड ऑन कौन से टाइप का बुलेटिन बनाना है. जो जैसे कि ग्रुप लाइक थेरेप्यूटिक डाइटिशियन होते हैं, हमें अगर हमें बुलेटिन में किसी ड्रग के फूड ड्रग इंटरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो हम किसके पास जाएंगे, थेरेप्यूटिक डाइटिशियन के पास जाएंगे. ओके. सो मेन काम फार्मासिस्ट का होता है, बट जो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक और नेचर ऑफ द बुलेटिन, वो जो स्पेशलाइज्ड फील्ड होते हैं वो उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है बुलेटिन बनाने के लिए. नाउ नेक्स्ट इज पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर. हमने ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर देख लिया, जिसमें हमने स्टाफ देखा, उनका कंट्रीब्यूशन देखा कि वो लोग बुलेटिन कैसे बन. नाउ अब एक होता है पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर. एज वी ऑल नो, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर होते हैं जो ड्रग की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, या फिर यहाँ पे पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर वो होते हैं जो पॉइजन रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि पॉइजनिंग से बचना कैसे, प्रिवेंशन कैसे करना, अगर हो गया है तो उससे हमें क्या थेरेप्यूटिक मतलब क्या क्या कैसे उनसे प्रिवेंट करना, इफेक्टिव क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे पॉइजन इंफॉर्मेशन सर्विस या फिर सेंटर में मिलती. PCC, Poison Information Center, is a provision of service regarding poison related danger and management with poisoning cases. Yes, ये वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा था. मैनेजमेंट विद पॉइजनिंग केसेस मतलब अगर पॉइजनिंग हो गया तो उन्हें मैनेज कैसे करना. सर्विसेज रिगार्डिंग पॉइजन एंड इट्स डेंजर मतलब पीसीसी एक ऐसा सर्विस सेंटर है जो पॉइजन के रिलेटेड जो डेंजर्स होते हैं उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज मैनेजिंग द पॉइजनिंग केसेस. अब पॉइजनिंग हो गया तो वाले केसेस को कैसे मैनेज करना, कैसे ड्रग थेरेपी प्रोवाइड करनी, वो भी पीसीसी सेंटर प्रोवाइड करते हैं. कंसेप्ट इनिशिएटेड इन चिकागो 1953. जो पीसीसी है वो मेनली दो रीजन्स के लिए इस्टेब्लिश हुआ, to provide rapid access of information valuable in assessing and treating poisoning. मतलब रैपिड एक्सेस इंफॉर्मेशन. अब एज वी ऑल नो जो पॉइजन अपनी बॉडी में फैलता है वो क्विक एंड फास्ट फैलता है कि बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं वो उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है विद इन 5 to 10 minutes और इवन विद इन सेकेंड्स. तो क्या होता है, पीसीसी सेंटर डेवलप करने का मेन रीजन ये है प्रोवाइड रैपिड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब रैपिडली क्विकली एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन असेसिंग एंड ट्रीटिंग पॉइजनिंग केसेस. ओके. टू असिस्ट द पॉइजनिंग प्रिवेंशन, पॉइजनिंग प्रिवेंट कैसे करना है ये भी पीसीसी इसीलिए ही एस्टेब्लिश हुआ था. नेक्स्ट स्टाफिंग सिस्टम. कौन कौन से स्टाफ होते हैं, फार्मेसी बट ऑब्वियस फार्मेसी टीम होती है,
फार्मासिस्ट होते हैं वो स्पेशली ट्रेंड इन पॉइजनिंग इंफॉर्मेशन के बारे में, दे आर हाईली ट्रेंड होते, दे नो ईच एंड दे हैव नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी पॉइजन, और उनकी मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन इन बारे में सारा होता है। मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग, इमरजेंसी कैसे मैनेज करनी, ये भी नॉलेज वो फार्मासिस्ट को होता है। बाकी फार्मेसी टेक्नीशियन एंड स्टूडेंट हो जो मेन फार्मासिस्ट होता है जो पॉइजनिंग इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है उन्हें असिस्ट करने। मेडिकल टीम होती है, टॉक्सिकोलॉजिस्ट स्पेशलाइज्ड इन टॉक्सिसिटी आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। अगर किसी को पॉइजनिंग हो गया है तो पॉइजनिंग की किसी ड्रग सब्सटेंस की टॉक्सिसिटी होगी तो वो भी एक पॉइजनिंग केस ही है। तो जो टॉक्सिकोलॉजिस्ट होते हैं जो मेनली टॉक्सिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, वैसे स्पेशलिस्ट को भी एज अ मेडिकल टीम पीसीसी सेंटर में होते हैं। सपोर्टिंग टीम लाइक पीपल ट्रेन इन लाइब्रेरी साइंस विद कंप्यूटर नॉलेज, एज डीआईसी में भी थे वो कि लाइब्रेरी साइंस या कंप्यूटर नॉलेज वाले सपोर्टिंग टीम भी रखते हैं, क्योंकि डेटा को एज अ कंप्यूटराइज्ड एक्सेस करना होता है, रिट्राइव करना होता है एक जगह पे कलेक्ट करने के लिए वो सपोर्टिंग टीम होती है जिसे प्रॉपर कंप्यूटर नॉलेज होता है। फंक्शंस, पीसीसी के फंक्शन क्या होता है? असेसिंग ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन ड्यूरिंग पॉइजनिंग वायर 24 आवर इमरजेंसी टू टेलीफोन सर। सो फर्स्ट फंक्शन है कि असेसिंग एंड ट्रीटमेंट रिकमेंड, मतलब ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन करना है बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉइजनिंग। 24 आवर इमरजेंसी फोन सर्विसेज होते हैं उनके प्रोवाइड करनी होती है जिससे कि वो थ्रू फोन वो 24 आवर्स असिस्ट कर सके ड्यूरिंग पॉइजनिंग। प्रोवाइड पब्लिक एंड प्रोफेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, टीचिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट करते पब्लिकली या फिर प्रोफेशनली किसी हॉस्पिटल्स में जाए। कलेक्ट डेटा ऑन पॉइजनिंग पे जो भी लेटेस्ट कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है डेटा से वो कलेक्ट, रिसर्च भी परफॉर्म करते हैं। टू असिस्ट द पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर ड्यूरिंग हजार्डियस मटेरियल्स पे, मतलब कहीं पे हजार्डियस मटेरियल्स जैसे कि किसी फैक्ट्री में से केमिकल रिलीज हो रहा है तो वो अचानक से रिलीज हो गया किसी हार्मफुल सब्सटेंस केमिकल, तो वो क्या होगा, वो एक हजार्डियस सिचुएशन हो गई। तो तभी भी पब्लिक एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर प्रोवाइड करता है, उनकी मदद करता है। कंप्यूटर, अब नेक्स्ट टॉपिक कंप्यूटराइज सिस्टम, जो डेटा को हम रिट्राइव करना है, डेटा को कलेक्ट करना है, वो भी किस में करते हैं? प्रॉपर कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जिसे कि हम डेटा को इजीली एक्सेस एंड रिट्राइव कर सके। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम इज इजी टू एक्सेस हो गए क्योंकि नाउ सब डिजिटली हो गए, कंप्यूटराइज्ड हो गया है, प्रोवाइड फास्ट एक्सेस हो गया है। कंप्यूटर कैन स्टोर वेरी लार्ज ऑफ इंफॉर्मेशन। पहले क्या होता था जब कंप्यूटर्स नहीं थे तो ईच एंड एवरी फॉर्म इंफॉर्मेशन होती थी, आर्टिकल्स होते थे, रिसर्च पेपर, उनकी हमें कॉपीज रखनी पड़ती जिससे कि बहुत सारा बंडलिंग हो जाता था। और जब हमें इजीली और क्विकली डेटा हमें चाहिए तो तब हमें पूरे वो फाइल को ढूंढना पड़े। बट अब सब कंप्यूटराइज हो गए जिससे कि वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन भी हम उसमें स्टोर कर सकते हैं और इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू फाइंड इंफॉर्मेशन टू यूजर वाया कंप्यूटर सर्विस। ईजी टू फाइंड हो गया है इंफॉर्मेशन को और रिट्राइव करना वाया कंप्यूटर सर्विसेज। Today's worldwide website are provided drug and poison information. बिलो ये सारी वेबसाइट्स है और डेटाबेसेस है विच इंक्लूड्स वर्ल्ड वाइड आर प्रोवाइडिंग ड्रग्स एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। फॉर एग्जांपल दिस आर बिलो आर द डेटाबेस एंड वेबसाइट्स है जैसे कि ड्रग कंट्रोल वेबसाइट है, CIMS इंडिया, ड्रग इंफॉर्मेशन है, नेशनल लाइब्रेरी मेड्सकेप, ये सारी वेबसाइट्स है जो कि हम थ्रू कंप्यूटरली एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी वेबसाइट्स में हम ड्रग्स एंड पॉइजन्स की इंफॉर्मेशन एट एनी टाइम एंड इजीली क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। Storage and retrieval of information. How we can store and retrieve any information from our computer system. Information is stored and retrieved whenever needed. Computer system है तो information is easily stored and retrieved from the data whenever we are needed, like at any time.
Information is collected properly, stored in files and or in computers. Yes, as we all know, जो information होती है वो properly stored की जाती है, collect की जाती है proper folder में या फिर files में या computers में. Recall the information is retrieval of the information. Information को recall करना है, मतलब फिर से हमें पढ़ना है या फिर retrieve करना है, that is called retrieval of information. Information retrieval is a science of searching for information in a document or searching within database, searching for documentation themselves. मतलब इधर डेफिनेशन भी बताई गई है कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मतलब क्या होता है कि इज अ साइंस ऑफ सर्चिंग इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट. इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या होता है कि एक साइंस ऑफ सर्चिंग, मतलब एक प्रॉपर साइंस है, टेक्निक है ऑफ सर्चिंग इंफॉर्मेशन in the documents or through websites within or through databases or searching खुद से themselves search करना in the internet, that is called information retrieval. Retrieval of information is defined as searching, organizing, storage, retrieval and evaluation of information stored database. मतलब जो stored database है वहाँ से information को निकालना through search करके या फिर उसे organize करना या फिर proper information को evaluate करना from stored search data from particular website, उसे कहते हैं retrieval of information. Information is usually stored in database in computers. जो डेटाबेस होते हैं जो कंप्यूटर्स में वहाँ पे स्टोर होती है. इंफॉर्मेशन रिट्रीव गिव्स इंफॉर्मेशन फॉर सर्च मैटर, मतलब जो जो भी अपना टॉपिक है मेन उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे. प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन टू द यूजर व्हेनेवर आस्क्ड, जब भी जैसे भी टाइप की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है, जैसी हमने मांगी है वैसे ही देते, कभी भी व्हेनेवर आस्क्ड. इज नॉट IR does not give detailed information for the search or query. Instead, it provides existence or non-existence of information and documentation related to query. ओके आज जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है तो वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन या पूरा आंसर हमें प्रोवाइड नहीं करते, बट वो क्या प्रोवाइड करते हैं, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस इंफॉर्मेशन होती इन अ फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट या फिर जो थीसिस होती या फिर जो रिसर्च आर्टिकल्स होते अबाउट द क्वेश्चन वी हैव आस्क्ड, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. IR is the bridge between the creator and the user of the information. Information retrieval वो एक ब्रिज है बिटवीन द क्रिएटर, एक क्रिएटर और एक जो यूजर है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. क्रिएटर कौन कौन है, जो रिसर्च करते हैं या फिर जो थीसिस प्रोवाइड करते हैं या फिर जो अलग अलग रिसर्च करते, उनके बीच में जो एक ब्रिज है. For different types of organization and businesses, different types of information is needed. Yes, जैसे कि DIC है तो उन्हें different type की information चाहिएगी. Poisoning Information Center है तो उन्हें different type की information चाहिए. Based on the need of organization, information may be text, image, video और multimedia. जो information retrieval होते हैं वो इंफॉर्मेशन कैसे होती, मे बी टेक्स्ट के फॉर्म में होती, इमेजेस के, समटाइम ऑडियो मल्टीमीडिया के फॉर्म में भी हो सकती. There are 5 types of information storage and retrieval system. Firstly, database. Second, reference. Third, documentation. Database के widely used system and users are organized or library government agency. जो database होती है widely used information है और यूज इंफॉर्मेशन एंड यूजर्स आर ऑर्गेनाइज्ड, मतलब इसमें जो यूजर्स होते हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, उन सब का क्या होता है, डेटाबेस होता है, ये वाइडली यूज किया जाता है. बाकी जो रेफरेंसेस हो, स्टोरिंग रेफरेंसेस टू डॉक्यूमेंट्स लाइक मेडलाइन डेटा में जो CD रोम में हम रेफरेंसेस एज भी ऑन लो ब्लू कलर के या फिर रेफरेंसेस लिखे होते हैं तो वहाँ से भी हम डेटा को स्टोर एंड रिट्राइव कर सकते. बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट इज यूज अलॉन्ग विद एबिलिटी टू रिट्राइव स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, पेजेस, डिस्प्ले, CD रोम, ऑडियो टेप, वीडियो फिल्म, हार्ड डिस्क. डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं कि एक रिट्रीव स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेज, टेक्स्ट, इमेज, प्रिंट्स. इन सारे डॉक्यूमेंट को स्टोर करना. एग्जांपल CD रोम में हम स्टोर करते हैं या फिर ऑडियो टेप्स में, वीडियो फिल्म्स में या फिर हार्ड डिस्क में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं इन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या फोल्डर के फॉर्म में. Fourth है टेक्स्ट.
दिस सिस्टम रिट्राइव इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट, टेक्स्ट के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जैसा अपना इनपुट होता है, यूजुअली अवेलेबल इन सेंटेंस और पैराग्राफ में होता है। एग्जाम्पल क्या है, डिक्शनरी इन कंप्यूटर मेमोरीज, जो कंप्यूटर मेमोरीज में जो डिक्शनरी होती है वो इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। इमेजेस, यूजेस इमेजेस फॉर रिट्रीवल, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है अगर हमें रिट्रीवल इंफॉर्मेशन को इमेज के फॉर्म में रिट्राइव करें तो वी कैन ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल कार्टून के फॉर्म में हो सकती है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के फॉर्म में हो सकती है, कोई पिक्चर के फॉर्म में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल द एंड।